This lecture is for MSc Botany students of semester 3rd. We will discuss about the paper 7th of your syllabus and unit 1st. I advise you that you regularly watch the lecture on YouTube channel, for which we have send you the link. Second thing is, whatever we are discussing about online discussion between my student and me regarding plant biotechnology, you please carefully watch the lecture on YouTube. Second, if you have any question on particularly whatever I have taught you, you can ask me by any source of media like WhatsApp number or on group. Okay, we will start the plant tissue culture part 4, because I have divided the unit first into plant tissue culture part 1, 2, 3 and 4. This is my 4th lecture to you. This is plant tissue culture part 4. In part 3, we have discussed about the basic terminology or something which we have or in paper they can ask you as a short note. Okay, so we have discussed earlier about the callus culture. This is all about part 3. We have discussed in detail about micropropagation. We have discussed about the cloning, and 4, somatic embryogenesis. Fifth, protoplast culture. And 6th, application of plant tissue culture technique. We have earlier discussed about callus culture. We have earlier discussed about micropropagation. We have discussed about cloning. Now these 3 chapters we have to discuss. Today we will discuss in detail about the somatic embryogenesis. These may be asked, the question may be asked as a short note from one by one or in detail. Please listen carefully, and whatever I am writing on blackboard is very important for your further study. Okay? Now, in part 4, what we will do is somatic embryogenesis. As I have told you about what is somatic embryo. Somatic embryo. First, what is somatic embryo? Define somatic embryo. Somatic embryo means the embryo developed from plant tissue culture, from vegetative or somatic part of वह एम्ब्रियो जो कि यदि आप किसी भी सोमेटिक पार्ट से प्लांट के या
वेजिटेटिव कायिक भाग से डेवलप करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक को यूज में लेके उस एम्ब्रियो को सोमेटिक एम्ब्रियो कहते हैं। एंड द फिनोमिनन, द रीजनरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो फ्रॉम वेजिटेटिव सेल इज कॉल्ड द फिनोमिनन of development of somatic embryo is called somatic embryogenesis. Generally जब सोमेटिक और कोई एम्ब्रियो की बात आती है तो अपन क्या करते हैं कि एक जनरेटिव एम्ब्रियो होता है। जनरेटिव एम्ब्रियो का मतलब ये है कि जब प्लांट के अंदर फ्लावर्स, पोलन ग्रेन्स, पोलन ट्यूब एंड देन इट विल गो टू द स्टिग्मा एंड देन इट्स टू द ओवरी एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। व्हेन टू gametes, male and female, they get fertilized to form an embryo, zygote and then embryo. But here in plant tissue culture there is no need of any flower or any pollen tube or any gametes. A bipolar embryo can be developed from vegetative cell. This is a magic in plant tissue culture only. So we will discuss about the various steps in development of somatic embryo in plant tissue culture. In plant tissue culture, if you take an explant, this explant, when you inoculate on suitable physico-chemical conditions. Physico-chemical condition means physical conditions. The physical conditions are temperature, relative humidity, photoperiod. Whereas chemical conditions are nothing but they are nutrient medium with plant growth. If this explant is inoculated on a suitable physico-chemical conditions, suitable nutrient medium, suitable physical conditions like temperature, relative humidity and photoperiod, then we will get at the end of this process a somatic embryo. Now, first of all, if we inoculate on suitable media in culture room, then first of all, what will happen to the explant? This is nothing, this is a tissue culture vessel. This is a suitable medium for which we are talking, and this is the explant. Our target is to produce somatic embryo, and these are the various steps in somatic embryo. So first of all, we will inoculate aseptically the explant with our objective to develop the somatic embryo. Now this is the explant, this is the medium, and all the conditions, temperature, humidity and light photoperiod is suitable. Then what will happen to this explant? The medium will raise in the explant. It will absorb the media. Generally, in the medium,
For example, one medium, MS medium. If in this MS medium we add optimum concentration of auxins and cytokines. If you add an optimum concentration of auxins and cytokinin in combination to this medium and you inoculate the explant, then after 3 to 4 weeks क्या होगा? ये एक्सप्लांट है। मैं आपको इस एक्सप्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि इस एक्सप्लांट के अंदर कोशिकाएं होती हैं। बड्स होती है। ये पूरा की पूरा किसमें पड़ा है? इस मीडियम में पड़ा हुआ है। ये मीडियम इनटेक करेगा और सभी कोशिकाओं के पास ये मीडियम जाएगा। अब उसमें से क्या होता है कि द मीडियम, ऑप्टिमम मीडियम, जो कि सभी सेल्स को मिल रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज जो ये है कि ये जो मीडियम कई कोशिकाओं को मिल रहा है, बट जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तब लगेगा कि इस एक्सप्लांट में से जो एक्सिलरी बड है, लीफ है, जो भी है, कोशिकाएं तो सब में हैं। तो इस कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं ऐसी है जिसके अंदर सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का इनिशिएशन होगा। बिकॉज आई टोल्ड यू द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटेड लेटर वेदर इट इज द ऑक्सीन्स और साइटोकाइनिन, दे वर्क थ्रू द जीन which is present in the nucleus of the cell. तो जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो जीन पड़ी है उसमें ग्रोथ रेगुलेटर्स जाएंगे और ये ग्रोथ रेगुलेटर्स अंदर जाके जीन्स को ट्रिगर करेंगे, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन्स बनेंगे और वो प्रोटीन बनेंगे जो कि सेल को में सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए इंडक्शन देंगे, इंड्यूस करेंगे, सिग्नल देंगे। दिस इज द मेन मैकेनिज्म। तो जब कोई सेल्स ऐसी है जिसके अंदर सोमेटिक एम्ब्रियो के लिए वो इनिशिएशन हो जाता है, तो फॉर एग्जांपल दीज आर द ग्रुप्स ऑफ सेल ऑफ एक्सप्लांट। ये एक्सप्लांट की सेल्स है जो कि इसके अंदर पड़ा हुआ है। इसका न्यूक्लियस है सब सेल का। आफ्टर 3 to 4 weeks incubation in this suitable medium, कुछ सेल्स आपको सेल्स के अंदर जीन्स अपना कैरेक्टर, क्योंकि इंड्यूस कौन कर रहा है? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन एंड न्यूट्रिएंट मीडियम। तो जीन्स स्विच ऑन होगी, एक्सेलरेट होगी, और तो वो एक्सेलरेट होके इनके जीन्स में वो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, एमआरएनए बनना शुरू होगा, एमआरएनए से ट्रांसलेशन हो, प्रोटीन बनने शुरू होंगे जो कि इस सेल को आगे चलकर सोमेटिक एम्ब्रियो की तरफ बढ़ाते हैं। सो यू विल गेट फिजिकली, ये तो सारा अंदर की फंडामेंटल है। फिजिकली यू विल सी इन सम सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विल बी स्टार्ट। कुछ सेल्स ऐसी होगी जिसके अंदर वो डार्क ग्रीन लगनी शुरू हो जाएगी, आपको डार्क ग्रीन सेल्स। तो दीज सेल्स, मान लो इतनी सेल्स है, हजारों कोशिकाएं हैं, कुछ कोशिकाएं हैं जो कि डार्क ग्रीन कलर की हो गई है, मीन्स उसके अंदर एक्टिविटी शुरू हो गई है सोमेटिक एम्ब्रियो बनने की। तो दीज सेल्स इन दिस एक्सप्लांट, ये सेल्स किसकी है? इस एक्सप्लांट की है, जो मैं आपको एनलार्ज करके बता रहा हूं। तो ये जो कोशिकाएं हैं जिसमें एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, और ये एक्टिविटीज, ये सेल जो डार्क ग्रीन बन रही है, उन सेल्स को अपन कहेंगे एम्ब्रियोजेनिक सेल।
और जो सेल्स रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है उन सेल्स को अपन नॉन एम्ब्रियोजेनिक सेल्स कहेंगे। नॉन सेल्स मीन्स these cells they will further proceed towards the formation of somatic embryogenesis. So there is a classification of two cells. One is embryogenic cells, another is non-embryogenic cells. Now after this, यहाँ से somatic embryo का embryogenesis के steps शुरू होते हैं, development शुरू होता है. तो this is called the development of somatic embryos in plant tissue culture. The embryogenic cells. Now we start with the embryogenic cells. These embryogenic cells, they will behave differently from non-embryogenic cells. These are embryogenic cells. All are embryogenic cells. This is the anatomy of, मैं आपको anatomical view बता रहा हूं कि इसका एक्सप्लांट के अंदर क्या हो रहा है. So all are embryogenic cells because I am just drawing a diagram of embryogenic cells because अपन को non embryogenic cells से कोई मतलब नहीं है, केवल embryogenic cells है, क्योंकि अपन development of embryo कर रहे हैं, somatic embryo कर रहे हैं. Now these cells after triggering, after getting signals from growth regulators, they will first multiply. हर cell multiply. Fast multiplication will be there. हर कोशिका खूब मल्टीप्लाई होगी. It means further ये जो सेल्स है सारे यहां से यहां तक वो अपना अपना एक एक ग्रुप बना लेंगे. जो एम्ब्रियोजेनिक सेल्स है उसके अंदर खूब मल्टीप्लिकेशन होगा और ये हर सेल अगर इसको एम्ब्रियो बनाना है तो ये सारी के सारी कोशिकाएं राउंडेड फॉर्म में आ जाएगी और आपको एक्सप्लांट के ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल संरचनाएं दिखनी शुरू हो जाएगी. तो दिस इज initiation of somatic embryo and this is the further development. This is the first stage of plant somatic embryogenesis or development of somatic embryo. और all the cells ये जो कोशिकाएं हैं fast multiply होगी और एक गोलाकार शेप ले लेगी and this is ये एक ग्लोब्यूलर शेप में बन जाएगी. हर सेल एक राउंडेड ग्लोब्यूलर शेप में बन जाएंगी एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेज आफ्टर इनिशिएशन इन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इज फर्स्ट स्टेज फर्स्ट. So this is the stage first is globular stage of somatic embryogenesis. ये ग्लोब्यूलर स्टेज है. हाउ वी कैन डिस्कस अबाउट दी. यही तरीका है कि अपन इसकी डिफरेंट स्टेजेस इस पूरी एक फ्लो चार्ट में लें. तो फर्स्ट एक्सप्लांट रखिए. एक्सप्लांट के बाद उस एक्सप्लांट को 2-3 वीक बाद वापस ऑब्जर्व करिए. देन यू विल गेट एम्ब्रियोजेनिक सेल्स. यू विल ऑब्जर्व द एम्ब्रियोजेनिक सेल्स एंड देन आफ्टर अगेन 2-3 weeks you will get all the cells will be developed, multiply mitotically and they form a globular structures, a rounded structure. बॉल के समान स्ट्रक्चर बन जाएंगे जो आपको क्लियरली टिश्यू कल्चर में जब आप ऑब्जर्व करेंगे वेसल को लेके उस परखनली में तब आपको एक्सप्लांट के ऊपर थोड़े गोलाकार स्ट्रक्चर दिखने शुरू होंगे और इस स्टेज को कहते हैं स्टेज फर्स्ट of somatic embryogenesis. This is a globular stage. Now second, after this
ramification or divisions, globular cell will further each and every globular cell further उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो elongation होना शुरू हो जाता है। सभी कोशिकाएं कोई इस डायरेक्शन में इलोंगेट करेगी, कोई इस डायरेक्शन में इलोंगेट करेगी, ऐसे ये सारी सेल्स है जो कहां पड़ी है, एक्सप्लांट के अंदर जो सेल्स है उसमें द ग्लोब्यूलर स्टेज 3-4 वीक बाद लंबी होनी शुरू हो जाती है और ये धीरे धीरे ऐसे 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 बन जाती है। ये सारा एक्सप्लांट के अंदर हो रहा है। जो आपको टिश्यू कल्चर के वेसल में जो एक्सप्लांट डाला हुआ है उसके बाद ऐसे ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर मिलने शुरू हो जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द सेकंड स्टेज सेकंड एंड दिस इज कॉल्ड टॉर्पिड स्टेज। टॉर्पिड की तरह निकलती है बाहर। तो स्टेज 1 स्टेज 2 ना फ्रॉम हियर यहां से स्टेज 2 से अगर स्टार्ट करते हैं तो फ्रॉम स्टेज 2 सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में यहां से अब वो आगे क्या करेगी, सेल्स के पास जगह नहीं है, वो लंबी बनती जा रही है, टॉर्पिड स्टेज में आ गई है और देन उसके बाद ये सारी की सारी सेल्स आगे चल के ऐसे बन जाती है। यहां से डिप्रेशन आना शुरू होता है और एक्सप्लांट में आपको क्लियर कट नजर आना शुरू हो जाता है कि ये जो नॉच है इसकी वो ऐसे हो जाती है और बाहर से आपको ये सेल सारी ऐसे दिखाई देने लग जाती है, ये ऐसे दिखाई देने लग जाती है, ये ऐसे दिखाई देने लग जाती है ऐसे, और खूब सोमेटिक एम्ब्रियो के ये पार्ट आपको ऐसे दिखाई देने लग जाते हैं। All the cells. If you cut the section of explant, then you will get such type of structure, and this is called stage 3rd, heart shape. Heart stage. First globular stage, second torpid stage, third हार्ट स्टेज। हार्ट के समान स्ट्रक्चर दिखने लग जाते हैं क्योंकि ये हार्ट शेप बहुत ही कम समय के लिए रहता है। आप 2-4 दिन बाद देखोगे तो ये हार्ट शेप, क्योंकि सेल्स और ये सोमेटिक एम्ब्रियो कंटिन्यू ग्रो हो रहा है और इस कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो रहा है इसमें क्या है, डिप्रेशन आता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, अपन इसको स्टेप में समझा रहे हैं। तो यह हार्ट शेप से धीरे धीरे डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो हार्ट स्टेज के बाद ये जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ये और अधिक बढ़ जाता है और ये होते होते और अंदर चला जाता है। सारी की सारी सेल्स और अंदर चली जाती है। और इसको जो नाम दिया गया है समझाने के लिए वह है ये सारी सेल्स है। दिस स्ट्रक्चर ऐसे लग रहा है कि घोड़े का खुर है, पांव है। तो हॉर्स स्टेज 4 इज हॉर्स शू स्टेज। चौथी स्टेज आती है और डिप्रेशन आ जाता है और हॉर्स शू शेप में आ जाता है। तो आपको बाहर से ये घोड़े के पांव की तरह दिखेगा। एक जो चिन्ह है घोड़े के पांव का पूरा और है कुछ नहीं, लंबा होना और डिप्रेशन होना और डिप्रेशन हो जाता है। अब देखिए मैजिक कि चौथी स्टेज के बाद, हॉर्स शू स्टेज के बाद
और अंदर जाता है और धीरे धीरे ये जो सेल्स है ये ऐसे बन जाती है। ये सेल्स है जो, क्योंकि ये अंदर इसका डिप्रेशन बढ़ रहा है, अंदर की तरफ टर्न हो रही है वो, तो ये सारी सेल्स सारे के सारे जो सोमेटिक एम्ब्रियो बनाने वाली कोशिका है जो कि इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेती है, इस शेप में आ जाती है। और इस शेप में इसलिए आना है इसको, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, क्योंकि इसको दो कोटिलिडन डेवलप करने हैं, इसको एक प्लांट और उसकी लीव्स वगैरह डेवलप करनी है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ऐसे, this structure is looking like rabbit ear stage। पांचवी स्टेज, स्टेज 5 is rabbit ear stage, क्योंकि इसकी शेप एक्सप्लांट के ऊपर सरफेस पे रैबिट की तरह दो कान होते हैं ना, ये ऐसे इस टाइप से, ये ऐसे स्टेज, दिस इज कॉल्ड रैबिट ईयर स्टेज, दिस इज द फाइनल स्टेज। उसके बाद तो 5 स्टेजेस सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की होती है, जिसमें इनिशिएशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल ड्यू टू द एक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, एंड देन धीरे धीरे प्लांट की कोशिकाएं को बनाना है केवल सोमेटिक एम्ब्रियो और उसका रीजनरेशन करना है। लेकिन अपन अपने पढ़ने के हिसाब से जो बाहर से जो दिख रहा है आपको, वो सारा के सारा ही स्टेजेस दिख रही है। समझाने के लिए अपन सोमेटिक एम्ब्रियो की ये डिफरेंट स्टेजेस देखते हैं। तो लास्ट 5th स्टेज इज रैबिट ईयर स्टेज। नाउ इस स्टेज के बाद आफ्टर 5th स्टेज, ये सोमेटिक एम्ब्रियो अभी क्या लगा हुआ है, ये सोमेटिक एम्ब्रियो जो कि एक्सप्लांट के ऊपर लगा हुआ है, ये सारे रैबिट ईयर जो है ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है। फाइनली क्या होता है, ये इंडिविजुअल सोमेटिक एम्ब्रियो ये यहां पर इसके अंदर हो क्या रहा है, सारा ये सारा इस वेसल के अंदर हो रहा है और यहां पे बन रहा है ये सारा। तो ये जो रैबिट ईयर स्टेज है ये यहां पर गिर जाता है, इट विल डिटैच्ड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ एक्सप्लांट और मीडियम के अंदर गिर जाता है। अगर ये डिटैच नहीं होता है तो भी आप इसको फोर्सेप्स से हटा लीजिए और एक नए मीडियम में डालिए। उस मीडियम में देयर विल बी नो ग्रोथ रेगुलेटर्स, ओनली न्यूट्रिएंट मीडियम। यू विल गेट दिस सोमेटिक एम्ब्रियो, इट विल जर्मिनेट एंड इट विल फॉर्म यू, ये जो सोमेटिक एम्ब्रियो है जो इस मीडियम के ऊपर दो कोटिलिडन होके ये जर्मिनेट हो जाता है और पूरा प्लांट बना देता है। दिस इज द इन विट्रो plantlet developed or produced through somatic embryogenesis. This is all about somatic embryogenesis. You will get the plant in plant tissue culture. You just pick the plant out, transfer to the hardening medium, and then transfer to the. This is nothing but it is an embryo. But अपन इसको एम्ब्रियो क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं? तो अगले अपन डिस्कशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोमेटिक एम्ब्रियो, आप इसको एम्ब्रियो कैसे कह रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर विल बी रीजनरेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोमेटिक एम्ब्रियो एंड यूजेस ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो. ओके, थैंक यू.